Dear students, today we are going to discuss regarding functions of finance manager in modern age. Actually, finance manager holds key position in any industrial organization. The title of financial manager may be vice president finance or director of finance or financial manager. Financial manager is usually used for the chief financial officer. The chief financial officer has to report directly to the managing director or the board of directors or the chief manager of the firm. The chief financial officer has both line and staff responsibilities. He is directly concerned with the financial planning and control. He is a member of the top management and is closely related with the formulation of policies and making decisions for the firm. The treasurer and the controller are under the supervision. He must guide to them and others in the effective working of the finance department. The main function of the treasurer is to manage the firm's funds. His major duties include forecasting the financial needs, administering the flow of cash, managing credit, floating securities, maintaining relations with financial institutions, and protecting funds and securities. On the other hand, we can say that functions of controller relate to the management and control of assets. His duties include providing information to formulate accounting and costing policies, preparation of financial reports, direction of internal auditing, budgeting, inventory control, tax, etc. It may be stated that controller's function concentrate the asset side of the balance sheet, while treasurer function relate to the claim side. The functions of treasurer and controller are described separately. Now we are going to discuss the functions of treasurers. What are the basic functions of treasurers in any industrial organization? First one is provision of finance. To establish and execute the programs for the provision of finance required with the business. Next one is investor relation. It is a significant task of treasurer to establish and maintain the adequate market for the company's securities and to maintain adequate contract with investment community. Next is short-term financing. To maintain adequate sources for the company's current borrowings from the money market. Next one is banking and custody. To maintain banking arrangements, to have custody of all disbursed
the company's monies and securities, and to the responsibilities for the financial aspects of real estate transaction. Next and significant is credit and collection. To direct the granting of credit and the collection of accounts due to companies. Next, most important factor is investment. It is also main task of treasurers to invest the company's funds as required and establish and coordinate policies for investment in pension and other similar trusts. Next and last is insurance, to provide insurance coverage as may be required. Now we are going to discuss the functions of controller. Controller holds key position in finance department. So he is directly related with policy formation. The first one function of controller is planning and control. To establish, coordinate and administer as a part of management, a plan of control of operation. This plan would provide to the extent required in the business, profit planning, programs and capital investing, and for financing, sales forecast and expense budgets. Next, second is reporting and interpreting. Because controller holds key position in organization, so reporting and interpreting is the basic task, it's a main task of controller. For this, he compares actual performance with operating plans and standards, and to interpret the results of operations of all levels of management and to the owners of business, to consult with all management about the financial implications of its actions. Next is tax administration, to establish and administer the tax policies and procedures. Next is government reporting, to supervise and coordinate the preparation of report to the government agencies. Protection of assets. It is most significant task of controller to assure protection of business assets through internal control, internal audit, and assuring proper insurance coverage. Next is economic appraisal, to appraise economic and social forces and government influence and interpret their effort upon business. These are the basic functions of treasurers and controllers. Now we are going to discuss about financial manager in Hindi. वस्तुतः वित्तीय प्रबंधक आधुनिक उद्यमों में आधारभूत भूमिका का निर्वहन करता है। यह उच्च प्रबंधकीय टीम का डायनामिक मेंबर होता है, गतिशील सदस्य होता है। वर्तमान समय में उसके कार्य अभिलेख अनुरक्षण, सूचना निर्माण, कोषों की व्यवस्था तक ही सीमित न होकर अपितु संगठन के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में एडवाइजरी होती है, सलाहकार की होती है। अब वो संगठन के भविष्य को आकार देने हेतु
रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। इसके लिए पूंजी के आवंटन से लेकर कोषों के प्रभावपूर्ण उपयोग तक में वित्तीय प्रबंधक की भूमिका होती है। संगठन में निर्णयन संबंधी जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें भी वित्तीय प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्तुतः उद्यमिता के बृहद स्वरूप कंपनी संगठन के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कंपनी स्वरूप में स्वामित्व और प्रबंधन के मध्य स्पष्ट पृथक्करण होता है। स्वामित्व कुछ लोगों के पास होता है, प्रबंधन कुछ लोगों के पास होता है। कंपनी के स्वामित्व अंशधारकों एवं प्रबंध निदेशक मंडल के मध्य स्थापित किया जाता है। इनके बीच जो साम्य की स्थापना है, दोनों पक्षों के हितों को संरक्षित करने की जो व्यवस्था है वो वित्तीय प्रबंधक द्वारा संपादित की जाती है। हमारे देश में निगमों के अंतर्गत इसे मुख्य वित्तीय प्रबंधक, चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर, वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, अनेक नामों से हम जानते हैं। वित्तीय प्रबंधक की भूमिका हेतु दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक परंपरागत विचारधारा है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधक का पद महत्वहीन माना जाता था। उसको केवल कोषों के संग्राहक के रूप में स्वीकार किया जाता था। ये सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए अकाउंटेबल होता था और संगठन के लिए या कंपनी के लिए कोषों की व्यवस्था कहां से करनी है, किस रूप में करनी है, यह केवल उसका दायित्व हुआ करता था। किंतु वर्तमान परिवेश में, आधुनिक परिवेश में वित्तीय प्रबंधक कोषों के संग्रहण, प्रयोग, नियोजन एवं नीति निर्धारण में तथा निर्णयन में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अब हम वित्तीय प्रबंधक के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर? सबसे पहले वित्तीय प्रबंधक का जो सबसे मुख्य कार्य है, प्रोविजन ऑफ कैपिटल है, पूंजी की व्यवस्था करना है, पूंजी का प्रावधान करना है। वित्तीय प्रबंधक का जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है वो पूंजी का प्रावधान करना है, संगठन को स्थापित करने, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु व्यवसाय द्वारा जो भी पूंजी की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व वित्तीय प्रबंधक का होता है। क्योंकि पूंजी के अभाव में हम न तो किसी व्यावसायिक संगठन के संचालन की सोच सकते हैं और न ही संगठन को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं, संगठन की उन्नति कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, रिलेशनशिप विद इन्वेस्टर्स, विनियोजकों से संबंध। वित्तीय प्रबंध का ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि वर्तमान कंपनी प्रारूप वाले व्यवसायों में पूंजी संग्रहण के महत्वपूर्ण माध्यम अंशधारक होते हैं। अतः कंपनी की प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित करने एवं बनाए रखने हेतु पर्याप्त बाजार की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधक को विनियोग बैंकों, वित्तीय विश्लेषकों, अंशधारकों से पर्याप्त संपर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। कभी कभी कंपनी की त्वरित वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय प्रबंधन को पर्याप्त स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड कस्टडी, बैंकिंग एवं संरक्षण। वित्तीय प्रबंधक को समुचित बैंकिंग व्यवस्था कायम रखने हेतु कंपनी की पूंजी एवं प्रतिभूतियों पर
स्वामित्व रखना होता है। उसके पास कंपनी की प्रतिभूतियों मीन्स सिक्योरिटीज, वी कैन से इन इंग्लिश सिक्योरिटीज को रखने अथवा वितरित करने का स्वतंत्र अधिकार होता है। वस्तुतः वित्तीय प्रबंधक संगठन का कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है। संगठन के हित में निर्णय लेने हेतु उसे स्वतंत्रता होती है। वित्तीय प्रबंधक द्वारा विभिन्न बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों से लगातार संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि संगठन के लिए आवश्यक धन की सुलभता हो सके। इसके साथ ही उसे प्राप्त धन को व्यय करने का भी अधिकार होता है। वस्तुतः वित्तीय प्रबंधक संगठन का कर्ता धर्ता होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, विनियोग कार्य। वित्तीय प्रबंधक द्वारा संगठन के विनियोग संबंधी निर्णय लेने पड़ते हैं। कंपनी द्वारा विनियोग के उपलब्ध विकल्पों में से जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका चयन करना वित्तीय प्रबंधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सर्वोत्तम विकल्प के चयन के उपरांत ही अधिकतम लाभ की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। नेक्स्ट है उधार एवं संग्रह कार्य, क्रेडिट एंड कलेक्शन वर्क। संगठन में उधार विक्रय की अनुमति देना, रकम की वसूली संबंधी कार्य वित्तीय प्रबंधक को ही करने पड़ते हैं। वस्तुतः किसी भी व्यापारिक या औद्योगिक संगठन हेतु उधार बिक्री करने की व्यवस्था होती है। संगठन की पूंजी अधिक मात्रा में उधार के रूप में चली जाती है तो संस्था के लिए पूंजी की अल्पता या पूंजी की कमी महसूस हो सकती है। अतः वित्तीय प्रबंधक उधार बिक्री के साथ बिक्री धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस फंक्शन। चूंकि वित्तीय प्रबंधक संगठन का संरक्षक होता है, कस्टोडियन होता है, संगठन में होने वाले प्रत्येक लाभ हानि हेतु वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अतः उनके द्वारा संगठन की संपत्तियों को सुरक्षित करने हेतु बीमा संबंधी कार्य भी करने पड़ते हैं। संगठन की संपत्तियों को आवश्यकता अनुसार बीमित कराकर नुकसान होने की दशा में भरपाई की व्यवस्था उसके द्वारा की जाती है। योजना एवं नियंत्रण। वित्तीय प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य योजना एवं नियंत्रण होता है। उसके द्वारा संगठन का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन निर्मित किया जाता है तथा निर्मित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त निरीक्षण, नियंत्रण संबंधी कार्य भी संपादित किए जाते हैं। सूचना। नेक्स्ट है सूचना एवं विश्लेषण, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड है। इट इज बेसिक फंक्शन, ये मूल कार्य है। वित्तीय प्रबंधक संगठन की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है, उसकी जो प्रगति होती है, उसकी सूचना वित्तीय विवरणों के माध्यम से टॉप मैनेजमेंट को देता है या ओनर्स को देता है। सूचनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण, संचालन, योजनाओं एवं मानकों का निर्धारण उसके द्वारा किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर, प्रारंभिक स्तर पर वित्तीय लेखों के निर्माण, लेखा पुस्तकों का रखरखाव, आर्थिक चिट्ठे में संगठन की यथार्थ परक स्थिति प्रस्तुत करने एवं उसके अनुसार इंटरप्रेट करने, एनालाइज करने संबंधी कार्य वित्तीय प्रबंधक को करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रशासन। संगठन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण सरकार का होता है। क्योंकि प्रायः ये कंपनी अधिनियम या अन्य औद्योगिक अधिनियमों से पंजीकृत होते हैं, अतः सरकार कर के रूप में संस्था के लाभों का कुछ भाग अवश्य लेती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक संगठन के कर प्रशासन हेतु भी उत्तरदायी होता है। शासन को
सूचित करना, रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट। संगठन की जो अद्यतन स्थिति है, अप टू डेट पोजीशन है, उसकी जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में शासन को सूचित करना भी वित्तीय प्रबंधक का दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है। और शासन को या सरकार को भेजी जाने वाली सूचनाओं का पर्यवेक्षण एवं समन्वय संबंधी कार्य भी वित्तीय प्रबंधक को निस्तारित करने पड़ते हैं। संपत्तियों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। वित्तीय प्रबंधक किसी भी संगठन की संपूर्ण संपत्तियों का कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है, जिसके कारण से संगठन की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, जिसके लिए उसे आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक अंकेक्षण एवं पर्याप्त बीमा कवरेज करनी होती है। थैंक यू।